اور میری طرف سے آپ کو یوم سبت مبارک ہو کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم خداوند کے قدموں میں جھکیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پیار اور محبت کا تقاضا ہے کہ وہ بار بار ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت، خدا کی پرستش، خدا کی ہم کریں، کیونکہ خداوند خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت، خدا کی پرستش کریں۔ اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، بائبل مقدس کی روشنی میں ہم پڑھیں گے زبور 96 زبور ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے خداوند کی حضوری میں۔ زبور 96 اس کی پہلی آیت، جن کے پاس بائبل مقدس ہیں وہ بائبل مقدس کو کھولیں اور زبور 96 نکالیں۔ اس میں یوں لکھا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں، اے قوموں کے قبیلوں خداوند ہی کی تعظیم اور تمجید کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے، زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ ہو، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے، خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جوان کی اور راستی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں زبور نویس داؤد یوں بیان کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، خداوند کے حضور پرستش کرو، خداوند کے حضور حمد کرو، کیونکہ خدا نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں۔ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، کہ اہل زمین کا مطلب پوری زمین، پوری کائنات، ہر قوم، ہر قبیلہ خدا کے حضور کیا کرے؟ گائے، خدا کی پرستش کرے، اور خداوند کے حضور گاؤ اور اس کے نام کو کیا کہو؟ مبارک کرو، کیونکہ ہمارا خدا مبارک خدا ہے، ہمارا خدا غیور خدا ہے، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، اس کی نجات کی خوشخبری دو، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آؤ، جو گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤ، اور لکھا ہے کہ قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا، اس کے عجیب کاموں کا کیا کرو؟ بیان کرو، کہ خدا نے کتنے عجیب کام کیے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے، ہمارا خدا آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، ہمارا خدا اندھوں کی آنکھوں کو کھول دینے والا خدا ہے، لنگڑوں کو چلانے والا خدا ہے، بہروں کو کان دینے والا، سنائی دینے والا خدا ہے، اور مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے، ہمارا خدا عجیب کام کرتا
मक़दिस का मतलब खुदा की हैकल, खुदा का घर। खुदा के घर में कुदरत और जमाल है। खुदा के घर में खुदा अपने घर में अजीब अजीब काम करता है। खुदा के घर में जब हम आते हैं तो जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं खुदा हमें मुहैया करता है। जैसे हम देखते हैं हन्ना जो बेऔलाद थी वो कहाँ आई? खुदा के घर में, खुदा के मक़दिस में, और उसने खुदा से कहा कि खुदावन मुझे औलाद जैसी नेमत बख्श दे, और खुदा ने उसे औलाद जैसी नेमत बख्शी, बेटे जैसी नेमत बख्शी। और लिखा है कि कुदरत और जमाल उसके मक़दिस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो, कि उसकी सिताइश और उसकी क्या करो? इज्जत करो। ताज़ीम का मतलब उसकी क्या करो? इज्जत करो। और लिखा है खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। जैसी खुदा की कुदरत है उसके मुताबिक उसकी तमजीद करो। ऐ नहीं कि चुप करके बैठे रहो, बल्कि तालियां बजाओ, खुशी से गाओ, अपनी जुबानों को खोलो और खुदावंद की तारीफ करो कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, खुदा ने कैसे मोजज़ात किए हैं, खुदा ने कैसे बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला, खुदा ने कैसे अपना कीमती लहू बहाकर खुदा यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया। ऐसा कोई कर सकता है जैसा खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया? हमारे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए तो कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहता है कि ठीक है इतना जो मर्जी होता रहे मेनू की लगे, मगर खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। किसकी खातिर? कि हम निजात पाएं, हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और लिखा है कि हदिये लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, कि हमें शुक्रगुजारी के हदिये लाकर खुदा के घर में आना है, खुदा की हैकल में आना है। और लिखा है पाक आराइश के साथ खुदा को क्या करो? सिजदा करो। हमें खुदा को सिजदा करना है, हमें खुदा के हुजूर में झुक जाना है। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में नया अहदनामे में कि एक दो शख्स खुदा की हैकल में आते हैं। एक फरीसी है, वो बड़ी तकब्बुर के साथ, बड़े गुरूर के साथ कहता है ऐ खुदा तू जानता है मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं अपनी दायित्व देता हूँ, मैं जो भी शरीयत के मुताबिक है मैं उस पर अमल करता हूँ, तू मुझे जानता है। मगर एक इंसान जो गुनहगार था और उसने क्या किया? खुदा के हुजूर में झुक गया, उसने सिजदा किया, उसने ऊपर नहीं देखा बल्कि झुका रहा और कहा ऐ खुदावन मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर, खुदावन मुझे माफ कर। और खुदावन ने उसके गुनाहों को क्या किया? माफ कर दिया। कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत, खुदा की बरकत होती है, मगर जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए हमें खुदा के हुजूर में झुकना है, खुदावंद को सिजदा करना है और अपने गुनाहों का क्या करना है? इकरार करना है। और लिखा है कि ऐ सब अहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो, डरते रहो, उसके हुजूर कांपते हुए, जैसे कि पहले ज़बूर में लिखा है कि कांपते हुए खुदा की इबादत करो और खुदा की परस्तिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम राह में हलाक हो जाओ। इसलिए हमें डरते और कांपते हुए खुदा की इबादत, खुदा की परस्तिश करनी है। और लिखा है वो जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं, और वो रास्ती से कौमों की क्या करता है? अदालत करता है। रास्ती का मतलब सच्चाई से। कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ को सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और खुदा के कलाम से जब हम वाकिफ होंगे तो हम निजात पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, और खुदा भी सच्चाई से हमारी क्या करेगा? अदालत करेगा। वहाँ किसी की कोई तरफदारी नहीं हो सकती। दुनिया में तो बाप बच्चों की तरफदारी कर देता है। अगर माँ गुस्से होती है तो बाप कहता है रहने दे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। और अगर बाप कुछ कहता है तो माँ उसकी तरफदारी करती है, मगर वहाँ खुदा की अदालत में कोई तरफदारी नहीं है। जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। अगर
बेटा गुनाह करेगा तो वो अपने गुनाहों की सजा पाएगा, अगर बेटी गुनाह करेगी वो अपने गुनाहों की सजा पाएगी, अगर मियां बीवी गुनाह करेंगे वो अपने अपने गुनाहों की सजा पाएंगे। इसलिए खुदावंद रास्ती से क्या करता है, कौमों कबीलों की अदालत करता है। आसमान खुशी मनाए, जमीन शादमान हो, क्योंकि खुदावंद अदालत करने के लिए आता है। जमीन और उसकी मामूरी क्या करे, शोर मचाए, समंदर भी शोर मचाए, उसके अंदर जितने जानदार हैं वो भी क्या करें, खुशी से ललकारें और शोर मचाएं खुदा के हुजूर। मैदान और जो कुछ उसमें हो बाग बाग हो, खुशी मनाएं, शादमान हो, क्योंकि खुदा अदालत करने के लिए आ रहा है। और लिखा है कि तब जंगल के सब दरख्त क्या करेंगे, खुशी से गाएंगे। तो आम इंसान की बात तो दूर है, दरख्त भी खुदा के जोर में गाते हैं और पहाड़ भी गाते हैं, शादमान होते हैं। हर जानदार जानवर चिरिंद परिंद क्या करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इंसान के लिए भी वाजिब है कि वो क्या करे, खुदा की शुक्रगुजारी करे, खुदा की हम्द करे, खुदा की प्रस्तुति करे, क्योंकि खुदा ने इंसान को तो अशरफ और मखलूकात बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, खुदा ने इंसान को तमाम मखलूकात पर हाकिम करार दिया कि तुम क्या कर सकते हो, जानवरों पर हुकूमत कर सकते हो, दरख्तों पर हुकूमत कर सकते हो, दुनिया में जितनी चीजें हैं उन पर क्या कर सकते हो, तुम हुकूमत कर सकते हो। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, दिल जान से खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रस्तुति करें। और लिखा है खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है और जमीन की अदालत करने को आ रहा है, और वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। सदाकत का मतलब सच्चाई से, जहान की, इस जमीन की, इस दुनिया की, और सच्चाई से तमाम कौमों की क्या करेगा, अदालत करेगा। तमाम कौमें, तमाम कबीले खुदा के हुजूर में हाजिर हो जाएंगे, हर जान खुदा के हुजूर में हाजिर होगी, और खुदावंद हर एक की अदालत करेगा। हर उस वक्त हर एक की किताब खुल जाएगी, क्योंकि हर इंसान जब पैदा होता है उसके गुनाह और उसके अच्छे काम लिखने शुरू हो जाते हैं। उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक सारे गुनाह, एक तरफ गुनाह है, एक तरफ अच्छे काम है। और जब इंसान खुदा के हुजूर जाएगा अदालत के लिए, तो फिर जब वो खुदा के तख्ते अदालत के सामने जाएगा तो खुदा कहेगा, हाँ भाई किन्ने गुनाह किते ने, किन्नियां तो अच्छे काम किते ने। और इंसान कहेगा, हाँ हाँ यसू मैं भी किता सी, मैं भी किता सी, ये और गुनाह तो मैंने नहीं इतने किए, हाँ मैंने तो इतने गुनाह नहीं किए। तो खुदा क्या कहेगा कि ये देखो तुमने कितने गुनाह किए। अगर इंसान नहीं मानेगा तो क्या होगा, सामने एलसीडी जैसे हम देखते नहीं वैसे चल जाएगी और हमारे सब गुनाह हमारे सामने आ जाएंगे। उस वक्त हम अपनी छाती पीटेंगे, हम कहेंगे ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, मगर उस वक्त रहम